So please, Gaurav, can you come on? So I think when I was a child, my parents wanted me to grow up and become Gaurav Agarwal. But I became myself. So anyway, so passing on to Gaurav Agarwal, and congratulations and thank you so much for coming over. You have changed the lives of a lot of people. A lot of people have been inspired. And first, we have a bouquet from Arushi, who's a big fan of yours. She's the essay girl of this year with 141 marks. And she said she does not read Forum IS. She only came to Forum IS for Crazy Photon. So you have a fan there. And we have, for Gaurav, we have, for everyone else, we are going to have a congratulations. But for Gaurav, we have a plaque which says thank you. So this is from India Bhai to Gaurav. Thank you for being Crazy Photon. So over to Gaurav. Let's hear a few words from him. Is it clear? नहीं आ रही? Check. Is it okay now? All right. Well, first of all, like any speech begins with customary thank you and all. So first of all, really thanks to Ayush, India Bhai and all their team for inviting me here. Thanks to all of you for patiently coming here, sitting here, listening to all this. And really thanks to everybody who has been involved here. Now, like I've spoken so many times now that it's really become difficult to speak again and again on the same things. Let me tell you when I was invited here, they didn't tell me that I was supposed to speak to the aspirants, the people who are still preparing. They very innocently told me that you are coming here to felicitate all those people on the Forum IS who have been selected this year. So I said, fine, fair enough. This is something, is a new thing, and hopefully I'll be able to speak new things. So then I accepted, and of course, like India Bhai asked me, so I had to come anyways. But now, being here, I'm being told that many of you are still preparing. So I'll have to bit of repackage and mold my speech, sort of, to make it relevant to the larger audience. And let me just say, okay, I'm going to divide my speech into two parts. The first part will be relevant to people who are still preparing, because that hopefully answers the question, why IAS? Now let me tell you, this was एक वो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी महाभारत की, एक यक्ष प्रश्न होता है कि युधिष्ठिर वो तालाब में जाते हैं पांचों पांडव, एंड वो एक यक्ष कोई सवाल पूछता रहता है, एंड दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो एक एक करके सारे मर जाते हैं. फाइनली युधिष्ठिर गोस एंड आंसर्स दोस क्वेश्चन. ऐसे वो विक्रम बेताल वाले क्वेश्चंस. तो ये मेरे लिए जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हुआ करता था, द यक्ष क्वेश्चन यूज्ड टू बी, व्हाई डू यू वांट टू कम टू IAS? एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्यों आना चाहते हैं भैया. आना चाहते हैं ठीक है, क्यों आना चाहते हैं मुझे नहीं पता था. एंड ऑलवेज आई यूज्ड टू लाइक, जब भी मैं दो बार इंटरव्यू प्रिपरेशन किया, दोनों टाइम लाइक अराउंड आधे टाइम मैं इसी बात को लेके सोचता रहता था कि यार क्या जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब दूंगा, व्हाट एम आई गोना से. और मेरे को ये पता होता था कि यदि एक बार ये सवाल मेरा निकल जाएगा ढंग से, देन माय इंटरव्यू इज गोना बी ऑल राइट. So,
एज आई एडमिट कि आई वॉज लकी ऑल्सो कि ये वाला सवाल उन लोगों को नहीं पता था कि ये सवाल मेरे लिए इतना बड़ा यक्ष प्रश्न है. सो दैट इज वाई ये सवाल जो है दोनों इंटरव्यूज में ढंग से निकल गए थे. एंड rest of the interview also went well. But finally, I think, after being in the service for 2 years, hopefully I have some sort of answer, which might be of, help to many of you. And maybe not directly, but at least it's going to put the context for you. And the second wala part of my speech is, it's just going to be, general observations ki what is government, what is it like to work in government. So many of bright people before you and after you, so many of bright people are going to will be joining government, but still कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है. इवेंचुअली वी ऑल एंड अप, कोई भी जनरल आदमी होगा हमेशा जो है गवर्नमेंट को गालियां देता रहेगा. तो व्हाई, हाउ इज इट लाइक टू वर्क इन गवर्नमेंट compared to any private sector thing. So these are two parts. So let me begin with the first part. Ki why IAS? Now I'm not sure how many of you know my past, like before this, what I was doing. Iske pehle I used to work in Hong Kong. I used to work in Citigroup, and I was a derivatives trader. For those from non-finance background, all of you would have heard about ये subprime crisis and all. US के अंदर जो subprime crisis वगैरह हुआ था, all that happened because of derivatives trading, right? And I was a derivatives trader. Now that was a very fantastic job, and also because of the, let me also say that because of that financial crisis, I was able to do well. क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने, मैंने ज्वाइन किया था जून 2008 में, जून 2008 में आई ज्वाइन सिटी ग्रुप. एंड उस टाइम पे दिस फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और चलते चलते हमारे सामने बिल्कुल ऐसा होता था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट फायर्ड पूरे. जैसे आई रिमेंबर एक दिन जो है मैं आई वाज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, और उसी दिन जो है लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था. लीमन ब्रदर्स, फॉर दोज हु डोंट नो, यूएस की 5th लार्जेस्ट बैंक थी, इन्वेस्टमेंट बैंक थी. तो लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था. आधा घंटा मैं दौड़ा था ट्रेडमिल पे, और आधे घंटे में मेरे सामने ऑयल जो है 100 से गिर के 80 पे आ गया था. तो दैट वाज द काइंड ऑफ मेल्टडाउन. सारे के सारे जो मार्केट्स थे एकदम यूं बिल्कुल गिरते जा रहे थे. एवरीबडी वाज सो वरीड, एवरीबडी गॉट फायर्ड. हम लोग जब ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करते हैं तो जो सीनियर वगैरह लोग होते हैं उनको देख के डर तो लगता ही है, तो हमें भी लगता था. और उसके बाद में क्या होता था कि जैसे मैं यहाँ पे बैठता था, मेरे जस्ट बगल में, मैं 48th फ्लोर पे बैठता था, तो जस्ट बगल में एक रास्ता हुआ करता था. ना जिसको भी फायर होना होता था उसके फोन आता था, वो लोग उस रास्ते से निकल के 50th फ्लोर पे जाते थे, और उसके बाद में बेचारे आते थे, आके जो है रोते हुए आते थे, अपना सारा सामान वामान लेके रोते हुए जो है निकल कर जाते थे. तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड एमडीज जिनको देख के हमें इतना डर लगा करता था, आई सॉ ऑल ऑफ देम टेकिंग दिस वॉक फ्रॉम बिसाइड मी. प्रीटी स्केरी, बट एक्चुअली उसकी वजह से हम लोगों को फायदा हुआ. फायदा कैसे हुआ? कि काम तो था ही, राइट? समबडी स्टिल हैड टू ट्रेड, और ऊपर वाले सब चले गए थे. सो वी गॉट आवर एक्सपोजर क्विकली. एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है वहाँ पे सिटी ग्रुप के अंदर राइज करते चले गए. एंड वो जो थी, आप लोगों में से वो देखिए किसी ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, राइट? तो उसके अंदर से इफ यू रिमूव द डक्स पार्ट, तो बाकी जो था वो उस तरह की लाइफ थी हमारी कि मतलब कोई फ्राइडे नाइट ऐसी नहीं जाती होगी जिसमें सवेरे 4 बजे से पहले हम लोग वापस घर आते होंगे. वहां पे आप लोगों ने मकाओ के बारे में सुना है? मकाओ, फॉर दोज हु डोंट नो, इज द वेगस ऑफ द ईस्ट. अब तो एक्चुअली लास वेगस को भी उसने ओवरटेक कर लिया है. तो पहले साल के स्टे में आई रिमेंबर मैं कम से कम 10-12 बार मकाओ गया था.
और काफ़ी जो है मतलब सब बिल्कुल जो होता है ना एकदम ग्लैमर वाला। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस जॉब्स इन द वर्ल्ड। वहाँ पे जो है सारी चीज़ें थी। मैं यूँ देखता था अपने ऑफिस से नीचे, आई स्टिल रिमेंबर जब कभी भी जो है जैसे मैं कॉफ़ी वगैरह पीने जाता था तो यूँ नीचे देखता था, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा होता था। और कई बार तो जैसे बारिश का टाइम होता तो बादल भी जो है हमारे नीचे होते थे। एंड बड़ा एक अच्छा सा वहाँ पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था, खूबसूरत सी सड़कें हुआ करती थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ जा रही होती थी, उधर जो है सी हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। सो दैट रियली यूज्ड टू बी वेरी गुड। और उसके बाद जो मेरा जॉब था दैट वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि मतलब इन ट्रेडिंग व्हाट हैपेंस इज कि आप अपनी कुछ अक्ल लगाते हो। इट्स नॉट परफेक्टली रैंडम, एकदम रैंडम नहीं होता। आप कुछ सोचते हो, कुछ अक्ल लगाते हो एंड देन यू प्रिडिक्ट थिंग्स कि ऐसा होगा कि बिकॉज ऑफ दीज इस तरह से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा और ये होगा। एंड देन आई यूज्ड टू ट्रेड व्हाटएवर, सारी करेंसीज में ट्रेड करता था, एशियन मार्केट ट्रेड करता था, एशिया के बॉन्ड्स ट्रेड करता था, यूएस के मार्केट ट्रेड करता था, S&P, डॉलर येन, डॉलर यूरो, ये वो दुनिया जान के करता था। सो इट वॉज प्रीटी गुड, राइट। सो आई वॉज कमिंग, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस क्योंकि मैं उस तरह की चीज से आया था, राइट। व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को IAS देना है, पिछले 10 महीने से, पिछले 9 महीने से मैं एक ऐसी जगह पे हूं जिसके बारे में 99% लोग, हो सकता है 100% लोग, आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं एक ऐसी जगह पे हूं, मनोर थाना करके जगह, राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान का यदि आप मैप उठाएंगे तो उसका जो सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट जो होगा, एकदम जो MP के अंदर घुसा हुआ, वो मनोर थाना है। पिछले 9 महीने से मैं वहां पर हूं। वो किस तरह की जगह है? वो इस तरह की जगह है जैसे इंडिया का भी 150 साल पहले हुआ करता था। वहां पे बस सड़क बन गई, बिजली आ गई, उसके अलावा जो सोशल स्ट्रेटा जो होता है, जो सोसाइटी की थॉट होती है, बिल्कुल वैसी है जैसे 150 साल पहले हुआ करती थी। वहां पे आज भी जो है 90% 95% लड़कियों का बाल विवाह होता है। और विवाह क्या होता है? विवाह नाम का होता है। वहां पे लड़कियों को बेचा जाता है, उन्हीं के जो है माँ बाप लड़कियों को बेचते हैं, फिर फर्दर वो उनको बेचेंगे, फिर फर्दर बेचेंगे। एक ही लड़की को 3-4 बार बेचा जाता है। वहां पे जो है घोर अशिक्षा है, घोर अशिक्षा। अपन लोग बोलते रहते हैं ना कि सरकारी स्कूल जो होते हैं उनका लेवल गिरा हुआ है, लेवल गिरा हुआ है, एसर वेसर का आप लोग पढ़ाते रहते हो। बट अंटिल यू सी दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि कितना गिरा हुआ है। वहां पे 9th क्लास के बच्चे हैं जिनको जो है 35 गुणा 3 करना नहीं आता, जिनको 48 में 6 का भाग देना नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसे 1-2 बच्चों, पूरी की पूरी क्लास को नहीं आएगा। जबकि वहां पे हो सकता है स्कूल में 6-6, 7-7 टीचर लगे हों। वहां पे एक PHC है, मतलब मेडिकल के अंदर गवर्नमेंट का क्या सेटअप होता है कि पंचायत लेवल पे सब सेंटर होते हैं, उसके बाद 4-5 पंचायतों पे एक PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, एंड देन पूरे ब्लॉक के अंदर एक CHC होता है। वहां पे एक PHC है जो 4-5 पंचायतों को केटर करता है। 2009 के अंदर वो 40 लाख में बना था, और आज तक वहां पे जब मैं गया तो एकदम स्पार्कलिंग क्लीन था, बेडशीट्स एकदम साफ, टॉयलेट्स एकदम साफ। क्यों? क्योंकि आज तक वहां पे कोई एडमिट ही नहीं हुआ। वहां पे डॉक्टर कभी बैठता नहीं है, कभी कभी एक आध बार आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है, जब डॉक्टर नहीं बैठेगा तो पेशेंट्स नहीं आएंगे। वहां पे जो है डेली की जो OPD होती है, डेली की OPD 5-6 दिखाते हैं ऑन पेपर। पेपर वाले वैसे तो फर्जी आंकड़े होते हैं, लेकिन वो फर्जी आंकड़े भी सिर्फ जो है 5-6 के होते हैं। कोई अच्छा दिन होता है, कभी कोई एक आध पेशेंट सही में आ जाता है तो डेली की OPD 10-12 की पहुंच जाती है। 6 साल से इस तरह से चल रहा है। ओनली इंसानियत वहां पे जो लेफ्ट है कि वो है कि जब दवाई जो एक्सपायर हो जाती है, सरकार की वो चलती है निःशुल्क दवाइयाँ, तो जब दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तब क्या है कि वहाँ PHC के बगल में 35,000 का एक गड्ढा खुदा हुआ है, बायो वेस्ट डिस्पोजल वाला। तो वहाँ पे जो है उसमें डाल देते हैं कि किसी आदमी को नहीं देते एक्सपायर्ड दवाइयाँ। तो इस तरह की वो जगह है। वहाँ पे जो है, जो अपने वो होते हैं ना बिजली वाले, आप कहते हैं AT&C लॉसेस, कि बिजली की चोरी, बेसिकली बिजली की चोरी राजस्थान में हाईएस्ट है।
70-75% कुछ है। वहां पर जो है शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही जो है सूरज वूरज ढलता है, हर आदमी जो है पिया हुआ होता है और पी पा के हर कोई जो है वही कुछ भी मारपीट क्राइम्स ये वो करता रहता है। अधिकतर लोग बाग, अब तो चलो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसके पहले मतलब 99% लोग वहां पे ओपन में डिफिकेट करते थे और अभी भी एक्चुअली हमारे कुछ कर्मचारी अभी तक जो है ओपन डिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली जो जैसा मतलब और वहां की पूरी कम्युनिटी अभी भी आप देखेंगे पूरी जो है कास्ट लाइंस पे एकदम बुरी तरीके से बटी हुई है। तो जैसा हिंदुस्तान 150 साल पहले था वैसा वहां पे जो है आज की डेट में। और उसके बाद में मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं तो पर्सनल लेवल पे मेरा जो ऑफिस है, यहां तो आप लोग ठीक है ये सब एसी वेसी में बैठे हो, मेरे ऑफिस में कूलर भी नहीं है, एक पंखे के अंदर जो है काम करता हूं और उसमें भी जो है लाइट नहीं आती। मेरे ऑफिस में इन्वर्टर भी नहीं है। मेरे घर में मेरी छोटी सी बच्ची है, 6 महीने की है, अभी हुई थी। तो घर के अंदर हमारे कोई एसी वेसी नहीं है, एक कूलर है और उसमें भी जो है लाइट दिन में 5-6 घंटे लाइट नहीं होती, बेचारी रोती रहती है। मेरी वाइफ उसको जो है वो शादी वाला जो कार्ड होता है ना, इनविटेशन कार्ड, वो गत्ते वाला, उससे हवा करती रहती है पीछे से। तो खैर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, जब कलेक्टर वगैरह बनेंगे तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी बेटर। बट आई एम टेलिंग यू कि वहां से आके ये मेरी लाइफ अब है, ठीक है। किस तरह वहां पे जो है पूरे मनोहर थाना के अंदर पूरे सब डिवीजन में एक भी एटीएम नहीं है। जब मैं कभी 2-3 हफ्ते के अंदर एक बार झालावाड़ जाता हूं तो एक साथ पैसे निकाल के लाता हूं। तो मतलब इस तरह की जो है स्टार्क जो डिफरेंस है वो मैं देखता हूं वहां पे। एंड उसके बाद जब मैं पूछता हूं अपने आप से, इज इट वर्थ इट, क्या ये सारा चेंज करना जो है वहां से यहां आना, वॉज इट वर्थ इट, तब मेरे को लगता है इट इज वर्थ इट। जब क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या, भले ही आपकी दुनिया भर में कितनी भी नेगेटिविटी हो, ठीक है, आईएएस को हर कोई जो है बाबू बोलता रहता है, आईएएस को हर कोई गाली देता रहता है, ठीक, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, ठीक, जब आदमी आपके पास आता है, कोई आदमी इस तरह के एरियाज में आपके पास आता है तो वो उसकी आंखों में जो है ना वो न्याय की उम्मीद लेकर आता है और तब आप उस आदमी के साथ न्याय कर सकते हो। एक मतलब मैं तो वहां पे जैसे 3-4 महीने एसडीएम रहा हूं। एक बेचारी कमली बाई है, 1978 में किसी पटवारी ने जब फादर मरता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी लड़के और लड़कियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 1978 में उन बेचारी कमली बाई का नाम जो है ना पटवारी जी ने गलती से नहीं डाला, गलती से। 1978 से अब तक कितने साल हो गए? 38। 38 साल से वो चक्कर काट रही है, 38 साल से। वो वृद्ध है, वो अपंग है, शीज उसके जो है बैसाखी वगैरह से चलती है। उस औरत को न्याय दिला सकता हूं मैं। दैट इज वाई इट इज वर्थ इट। वहां पे एक मतलब ऐसे हजारों इंसिडेंट्स होते हैं। एक राय सिंह करके किसान है, वहां पे क्या है कि खूब सारे डैम्स बन रहे हैं। मनोहर थाना जो है इट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन राजस्थान, तो वहां पे क्या है काफी सारे डैम्स बनते हैं, एकदम प्लेटू एरिया है। तो एक डैम बना है, डैम की दीवार यहां तक है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की वो सारी की सारी जमीन जो है डूब एरिया में आएगी। और डूब एरिया में भी आएगी तो आप ये देखो कि जो सबमर्जेंस, इसमें क्या होता है, जो भी लैंड एक्वायर करनी होती है तो क्या करते हैं, एक सबमर्जेंस लाइन बनाते हैं। उस सबमर्जेंस लाइन के अंदर अंदर जो लैंड होती है वो सारी एक्वायर होती है, उसे कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है। सबमर्जेंस लाइन भी ऐसी बनाई है कि सिर्फ ये आप देख सकते हैं, आपको ऐसे कैसे दिखाऊं कि सपोज करो ये है राइट, दिस इज द डैम वॉल और ये पूरी की पूरी लैंड है जो डूब एरिया में आई है। बट समहाउ जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स वगैरह किसने भी जो है सिर्फ आधी लैंड जो है डूब एरिया में दिखाई है। ऐसा क्यों है आप सब जानते ही हैं, अपन सब पढ़ते ही हैं, बिना जो है साइट पे जाके जो है कर करा दिया। वो बेचारा राय सिंह 6-8 महीने से डैम का काम चल रहा है, चक्कर लगा के जो है थक गया, ठीक है। उस जैसे आदमी को न्याय हम दिला सकते हैं।
उस आदमी को जो है न्याय हम दिला सकते हैं। आप लोगों के लिए 500 रुपए क्या है? 500 रुपए में एक पिज्जा भी नहीं आता अपन लोगों का। पिक्चर देखने जाते हैं 500 रुपए का तो एक टिकट ही आता है। कितने का आता है आजकल? 300-400 का तो आता ही होगा। हाँ, एक पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले लोगे 500 रुपए हो जाएंगे। 500 रुपए अपन लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। बट वहां पे हजारों ऐसे लोग हैं जिनको सरकार से 500 रुपए महीने की पेंशन मिलती है, और फॉर वॉट एवर रीजन्स वहां पे कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से उनकी वो पेंशन रुक गई है। उसके लिए वो लोग, अब देखो उनके लिए 500 रुपए कितना मायने रखते हैं कि वो उस 500 रुपए लेने के लिए सरकारी ऑफिसों में इतनी बार चक्कर काट रहे हैं। कोई कहां से आ रहा है, 20-20, 25-25 किलोमीटर से, इतनी भरी दोपहरी में 50-50 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां पे, बेचारे चल चला कर आते हैं। ये वो ऐसे लोगों को न्याय कौन दिला सकता है? ऐसे लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। हजारों लोगों की पेंशन जो है इस तरह का सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज करके कि हम जो है बिना उनके आए, उनके आने से पहले ही जो है हम उनके पास पहुंचे और उनकी पेंशन चालू कराए, ऐसा हम करा सकते हैं। राइट, काउंटलेस हैं, और इस तरह के काउंटलेस इंसिडेंट्स हैं। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूं, इन जनरल किसी की भी बात करूं, एनी ऑफ माई बैचमेट्स और सीनियर्स और व्हाटएवर, हर किसी के पास ये दैट इज द थिंग अबाउट IAS कि आप जो यू गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रियली डू समथिंग मीनिंगफुल। लोग आपके पास आते हैं न्याय की उम्मीद लेके, आज भी आते हैं न्याय की उम्मीद लेके, और आप वो न्याय करते हो। दैट इज वाई डिस्पाइट एवरीथिंग, वहां जहां बादल मेरे नीचे हुआ करते थे, वहां से जो है मैं अब सड़ी गलियों में घूमता रहता हूँ। इतना कीचड़ फीचड़ होता है, लोगों के घरों में जाके सुबह सुबह टॉयलेट बनवाते हैं। मतलब वो द हेल, इतने जो है पढ़ाई जो है क्या लेटरिन बनवाने के, लोगों को बताने के लिए कि लेटरिन कैसे करनी है यार, मतलब इस तरह की चीजें ये सब करते हैं। बट इट इज टोटली वर्थ इट, क्योंकि आप न्याय करते हो। और इनफैक्ट आई वुड जस्ट कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ स्पीच बाय सेइंग कि 2 months in IAS is worth more than 20 years of investment banking, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है आपका, completely different। तो होपफुली नाउ, वैसे तो मेरे को दोबारा इंटरव्यू देना नहीं होगा, बट आप में से कईयों को इंटरव्यू देना होगा, तो एटलीस्ट यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ बेटर पर्सपेक्टिव। आप में से भी कई लोग होंगे अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, सो एटलीस्ट यू विल हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव कि वाई क्यों करना चाहिए हमें ये सब। पावर वावर, ये फैसिलिटीज वगैरह ये वो सब होती हैं, बट दिस इज द रियल रीजन यू कम। एनीवेज, सो दैट पार्ट बीइंग ओवर। सेकेंड, एक छोटा सा पार्ट इन जनरल, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कुछ भी करता रहता हूं तो मैं कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता रहता हूं। पहले मैं ब्लॉग लिखा करता था तो उस ब्लॉग पे शेयर करता रहता था। तो पिछले जो भी मेरी फील्ड ट्रेनिंग हुई है तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं कि सरकार को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं। सरकारी सिस्टम में काम करना कैसा होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट लाइक। अच्छा, आप ये बताइए कि अपने टाइम का हु इज द बेस्ट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन आपको बेस्ट कौन लगता है? हाँ, सौरव गांगुली, धोनी को कितने लोग बेस्ट कैप्टन मानते हैं? चलो, और उस वाले रूम में अच्छा, और दद्दा को, सौरव गांगुली को कितने मानते हैं? अरे यार, गांगुली वाले जो है माइनॉरिटी में पड़ गए, तो हमें धोनी का एग्जांपल यूज करना होगा। सपोज कीजिए धोनी इंडियन टीम के कैप्टन है, ठीक है, धोनी के पास बढ़िया एक टीम है, धोनी कुछ भी कहते हैं, प्लान बनाते हैं, बढ़िया अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं और मैचेस जिताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, धोनी यदि सरकारी सेटअप में होते तो क्या होता। अभी थोड़ा सा यू विल हैव टू बियर विद मी, मैं थोड़ा ड्रॉ करूंगा तो यू विल हैव टू बियर विद मी कि पीछे तक जो थोड़ी बहुत आवाज ना आए, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। व्हाट इज दिस? क्रिकेट का मैदान, राइट? ये अपनी पिच, यहां पे विकेट कीपर, यहां पे अपना बॉलर, और कहां का फील्डर लगाना चाहते हो आप? बाउंड्री पे। कहां पर बताओ? मिड ऑन पे,
लो मिड ऑन पे एक लगा दिया, और पॉइंट पे लगा दिया एक, और गली गली में होती थी, गली यहाँ होती थी ना, गली पे लगा दिया, और हाँ अबे पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट यार सारे तो एक ही जगह और पूरा मैदान कवर करना होता होगा। एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर में लगा दिया, बाउंड्री में भी तो कोई होना चाहिए, ये लगा दिया, और बैकवर्ड स्क्वायर नहीं, बाउंड्री पे एकदम लगाएंगे आप, क्योंकि अपने को 20-20 क्रिकेट है। लॉन्ग ऑन पे, ये मिड ऑन पे लगा हुआ है, लॉन्ग ऑन पे भी लगाना है। कवर से यार एक्स्ट्रा कवर वाला एक यहाँ लगाते हैं लॉन्ग ऑफ पे, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 4 लगा सकते हैं फटाफट, एक फाइन लाइन पे लगता है, फाइन लाइन पे लगा दें, स्लिप लगानी है या थर्ड मैन लगाना है, थर्ड मैन। अब 2 और बचे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और बचे, कहाँ लगाने हैं, मिड विकेट। अरे यार कवर पे तो एक्स्ट्रा कवर 20-20 विकेट है मैं कहाँ यार, ये पूरी बाउंड्री खाली है, एक यहाँ पे तो लगाओ, मिड विकेट वाले को पीछे कर दें, ये लो, और एक यहाँ लगा दें लॉन्ग ऑफ, जो हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या, हो गए 11 हो गए। और यहाँ पे जो है अपने बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी, बढ़िया उनकी टीम है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे फील्डर्स वगैरह हैं, सब कुछ। अब धोनी जी आए गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, कितने फील्डर रह गए, 6 अभी 50% से ज्यादा लोग हैं, एक और हटाना है, किसको हटाएं, हाँ बॉलर को हटा दें, हमारे हाथ में नहीं है हटाना। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपके कभी 50% से ज्यादा लोग होंगे ही नहीं। अब धोनी को 2020 ये मैच खेलना है 5 लोगों के साथ, 11 नहीं 5 लोगों के साथ। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं धोनी की कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी बड़ी हैं। उसके बाद बॉलर है, इंडियन टीम का बेस्ट बॉलर कौन है, हाँ भुवनेश्वर कुमार, या वो तो इंजर रहता है, चलो ठीक है। सबसे खराब बॉलर कौन है, हाँ वो भी फिर भी डिसेंट है। यदि अच्छा सामने बैटिंग कर रहा है, बैटिंग किससे कराएं, क्रिस गेल से, राइट, ठीक है चलो डी विलियर्स की बैटिंग है, डी विलियर्स और क्रिस गेल। बॉलिंग जो है, बॉलिंग करानी पड़ रही है धोनी को, या बॉलिंग करानी पड़ रही है अपने ओपनिंग बैट्समैन कौन करें, शिखर धवन से बॉलिंग कराएंगे, शिखर धवन से बॉलिंग कराएंगे। धोनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शिखर धवन से बॉलिंग करानी है। उसके बाद में चलो शिखर धवन ने बॉल डाली, समहाउ धोनी जी लकी थे कि जहां पे फील्डर था या बाउंड्री पे उनके फील्डर थे, उनके पास गई बॉल, फील्डर बॉल नहीं रोक रहा, फील्डर आराम से बैठा हुआ है, बैठ के जो कुछ खा पी रहा है आराम से, या दर्शकों के साथ जो वो कर रहा है, ऑटोग्राफ वगैरह दे रहा है, ठीक है। अब धोनी जी क्या करेंगे, सरकार ने धोनी जी को जो है कैप्टन बनाया तो कुछ पावर्स भी दी हैं, ठीक है, लेकिन इस फील्डर के खिलाफ कुछ करने की पावर नहीं दी। इस फील्डर के खिलाफ कुछ करने की पावर किसके पास है, फील्डिंग डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, जो कहां बैठे होंगे, जयपुर में या दिल्ली में, ठीक है। तो धोनी जी को फील्डिंग इससे करानी है, वैसे ही जो 50% है उसके बाद बॉलिंग भी जो उन्हें शिखर धवन से करानी है, शिखर धवन चलो फिर भी बॉलिंग डाल देगा, रोहित शर्मा से बॉलिंग करानी है, और फील्डर जो है फील्डिंग नहीं करेगा। उसके बाद धोनी जी कुछ लिख के देंगे फील्डर के खिलाफ, तो वो फाइल जो है जाएगी जो जयपुर में बैठे हुए फील्डिंग डिपार्टमेंट के, उनके पास जाएगी, बीच में किसी के पास, वहां पर जो है वो कुछ लगू के फील्डर के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
उसके बाद में चलो वो आता है कि जो धोनी जी के जो टीम के जो ओनर हैं, फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजी ओनर आते हैं और बोलते हैं यार आपका जैसे अपना सबसे अच्छा फील्डर है कोहली, या कोहली से नहीं करानी फील्ड, कोहली को नहीं खिलाएंगे अपना जो सबसे खराब है इसको लगाओ यार, क्यों? ये हो सकता है मेरी जाति का हो, ये हो सकता है जो मेरा भाई बंधु हो, या इसने मेरे को पैसे दिए हो। इस तरह से कर करके धोनी को 4-5 लोगों की टीम दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? एक अंपायर होगा, ठीक है। अंपायर का काम क्या होता है? अंपायरिंग करना। और एक चीज और है कि अपनी क्रिकेट टीम का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर धोनी का काम सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं होगा। गवर्नमेंट के अंदर जो है धोनी का काम 50 और काम होंगे, जैसे कि घास के ऊपर जो है पानी वानी डला है कि नहीं, ये भी धोनी को देखना है। दर्शक जो है उनको जो है पानी वानी मिल रहा है कि नहीं, स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं, वो ढंग से बैठे हुए हैं कि नहीं, बाहर जो है ग्राउंड के बाहर पार्किंग हो रही है कि नहीं, वो भी धोनी को देखना है। तो दुनिया जहान की जो भी टीम है, और तो और ये तो फिर भी क्रिकेट से आप रिलेशन मान सकते हो। बाहर जो है मान लो कोई सड़क जा रही हो, सड़क के ऊपर जो है कोई आदमी बैठा हुआ हो, उसको ढंग से जो है कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो भी धोनी को देखना है, ठीक है। तो ऐसी धोनी जो है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर होते हैं, तो ये सारी दुनिया जहान की चीज उनको करनी है। उसके बाद में जो उनका काम था उसका भी 50% उनको देंगे, और उसके बाद वो आदमी भी ऐसे होंगे, और उसके उनके ऊपर भी धोनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे होता है अंपायर। अंपायर का काम है कि कोई आपका इस तरह का फैसला हो कि मान लो कोई LBW होवे या कुछ इस तरह की होवे, तो उसके ऊपर एक डिसीजन देना। तो अंपायर ये काम तो नहीं करेगा। LBW की कोई अपील 15 ओवर पहले हुई होगी, वो अभी तक जो है लंबित चल रही होगी, लेकिन अंपायर ये जरूर बताएगा धोनी को, ठीक है, या ये जरूर, कोहली यदि बैटिंग कर रहा है तो अंपायर कोहली को ये जरूर बताएगा, कोहली देख आस्किंग रेट अब जो है 9 हो गई है, अब तेरे को जो है इस तरह से जो है उठा के खेलना चाहिए। या कोहली देख अब तेरे को जो है तूने बहुत टाइम से कवर ड्राइव नहीं मारी है, कवर्स वाले जो है जो दर्शक है वो बोल रहे हैं, तेरे को कवर ड्राइव मारनी चाहिए। तो अंपायर, और अंपायर कौन है अपना यहाँ पे? एग्जैक्टली जुडिशरी, ठीक है। तो ये पूरा जो सेटअप है, और फिर उसके अंदर क्या है कि धोनी कोई भी एक्शन लेता है, ठीक है, कोई भी एक्शन लेता है, गवर्नमेंट के अंदर क्या है, बड़े सेट रूल्स होते हैं, लेकिन जो रूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप यदि एकदम रूल्स पे चलने लग गए तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको छोटे मोटे रूल्स इधर उधर वायलेट करते ही रहने होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने कोई रूल वायलेट किया, आजकल दुनिया जहान की ACB, लोकायुक्त, ये वो दुनिया जहान की चीजें सब धोनी के पीछे पड़ जाएंगी। सो दिस इज द एंटायर गवर्नमेंट सेटअप, जिसके अंदर आपको धोनी को आके फिर भी जो है धोनी को आके डिलीवर करना है। और इतना कुछ होने के बाद भी, अच्छा इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर फ्लॉलेस। हम लोगों में से कई होते हैं जिनके मैलाफाइड इंटेंशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, बट स्टिल दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप वी वर्क इन। और उसके बाद भी जो मतलब देयर आर मेनी गुड ऑफिसर्स हु हैव बीन एबल टू डिलीवर, जो डिलीवर करते हैं बहुत अच्छे से, जो है फिर भी जो है रिजल्ट्स वगैरह देते हैं। तो रियली हैट्स ऑफ टू देम जो इस तरह की जो है सिचुएशन में आके करें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ा आसान होता है कि आप किसी को कुछ बोलो वो काम होता है। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ऐसा नहीं होता। सरकार के अंदर इस बोलने में तो कुछ काम होता ही नहीं है, और उसके बाद ये दुनिया जहान की चीजें होती हैं। तो प्रॉब्ली दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटाइजेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग कि सरकार को गालियां क्यों पड़ती रहती हैं। और उसके बाद भी आप ये देखो कि यहाँ पे जो है किसी, अच्छा कैमरे वाले जो होते हैं, जैसे आप हैं, आप जो कैमरा लेके इस समय मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ मान लो जो गेल ने कोई शॉट मारा, फील्डर ने रोका, बहुत बढ़िया रोका, उसको कैमरा नहीं दिखाएगा, कैमरा ये दिखाओगे और इतना सारे खाली पड़े या फिर गेल ने कुछ यहाँ पे मारा और चौका चला गया, तो कैमरा ये दिखाएगा कि अरे देखो ये मैनेजमेंट है। सो दिस इज द हार्श रियलिटी। हम लोगों के यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, 28 पटवार हल्के हैं, 28 वाला मान लो कि सॉर्ट ऑफ पंचायतें हैं, उन्हें 12 पटवारी बेचारे काम करते हैं। जो काम करते हैं वो भी जो है डिमोरलाइज्ड हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 26 पंचायतें हैं, 26 पंचायतों में 10 बेचारे ग्राम सेवक हैं, 3-4 जो इधर उधर से पकड़ पुकड़ के लगाए। अपने जो इतने इम्पोर्टेंट वो चलती रहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन इनके जो सिलेक्शन होते हैं, जो भी इनके जो इनके लिए जो भी अपनी मशीनरी होती है, उन सबके सिलेक्शन सारे पॉलिटिकल होते हैं।
तो ये वो करते कराते इस तरह की सिचुएशन होती है जिसके अंदर फिर भी अपने को वर्क करना होता है, और वर्क करके जो भी प्रयास करके कर सकते हैं वो करते हैं. तो दिस इज द गवर्नमेंट सेटअप. इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, बट इवेंचुअली जब आप उन जो है हजारों लोगों की आंखों में देखते हो, या कोई एक आदमी दो आदमी जो उनकी आंखों में देखते हो जो आपके पास न्याय के लिए आते हैं और आप उनके साथ न्याय करते हो, तो इट रियली बिकम्स टोटली वर्थ इट. सो दैट माय फ्रेंड्स इज द थिंग विच आई वांटेड टू से. थैंक यू सो मच. So thank you so much, Gaurav. It was an amazing session that you gave, a lot of perspective. And I was sitting in the other room. There are a lot of toppers sitting there, rank holders, and everybody was saying, "Yaar, Gaurav se milwa do, Gaurav se milwa do." So I hope that you give them enough time. Anyway, so now your job is not done, by the way. So you have two more things on the to-do list for you. One is, since you are the most competent person here, one is felicitating those who have topped the examination this year. And then of course you'll have to interact with all of them. Okay, I think half the people did not get what I said. Okay, so we'll have a small brief felicitation. So we have some gift hampers basically for those who have secured ranks, and we'll have 10 times as many gift hampers next year when we meet again, of course in a much bigger venue than this. And I'm telling you, from what I have seen is that at least 40% of you are going to be here for the felicitation next year. So work hard, do very well. And so Gaurav, please come on board. And we have Siddharth is here, Pulkit is here. Is it audible to everyone? Okay, so Gaurav, first is we have Siddharth Jain. He has secured 13th rank. And let's have big cheers for all of them. And get the gift hampers. Wait. So इनको मध्य प्रदेश मिलेगा, अभी इन्होंने ये कहा. Thank you so much, Siddharth. Next we have Pulkit Garg, rank 27. One thing that I would like all of you to do is that when the toppers come, look at them, take a good look, identify them, because I know a lot of you have questions, but there are too many people answering questions and too less people probably asking questions. So what you have to do is at the end of this, these toppers are going to stay here. You can surround them from all sides and ask your personalized questions. So I'll try to give a brief इंट्रो ऑल्सो कि किसने कितने मार्क्स लाए हैं, किसने क्या किया है, ताकि आप समझ लें कि ये वाला एथिक्स वाला बंदा है, इसे एथिक्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये प्रीलिम्स में 140 वाला बंदा है तो इसे ये पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वैसे कर लीजिएगा बिकॉज विल नॉट हैव एनफ टाइम स्पेस टू एवरीवन टू एड्रेस द थिंग. सो एंड थर्ड वी हैव 31 रैंक कचरा भाई फ्रॉम द फोरम. सो गौरव, दिस गाय, हिज यूजर आईडी इज कचरा ऑन द फोरम. सो फोरम IAS इज अभिषेक पांडे, ऑब्वियसली अभिषेक पांडे, कचरा याद रहेगा. So Forum IAS, what he has done is we have a tagline that says keep producing IAS officers from garbage since 2012 because of him. And then we have Jatin Lal, please come over. And he is the famous Dark Knight Rises from the forum. A big clap for Jatin. यही वो वाला था, ये सर से मिलवा दो थोड़ा. काफ़ी इंस्पिरेशन मिला इनसे. ठीक है, सो वी हैव जतिन, थैंक यू सो मच जतिन. एंड नेक्स्ट वी हैव हर्ष, ही इज नॉट प्राउस्ट ऑन द फोरम एंड आई एम बाय द वे नियॉन. सो दिस गाय लाइक रियली फॉलोज मी, ही यूज्ड टू फॉलो मी अ लॉट and he has secured it in the first attempt. Gaurav, so this guy is a genius. 400 plus marks, so you know whom to catch. Okay, and then we have Richi Pandey. Richi, please come. Now this, he is the ethics superstar. Please surround him. Ethics, he's got 108 marks.
And then we have very shy Atul Vats. Please come in. The future Mr. Lavasna, I would say. Please, please. So this is Atul. He is battle tank on the forum, very active. And he is one of the people who reads me a lot. So, and then we have 69, Nitin God. Nitin God is here. So we have a small WhatsApp group. We call him Nitin God. So he is Nitin. Thanks, guys. And then we have 86th rank Narendra Shah. His username on the forum is Grey Matter Rules. He is wearing a shiny shirt today. He always does. And he's a sociology guy. So if you have any questions on sociology, he will be the guy to answer. And he has gotten good marks in GS as well. Sab mein balanced hai. He was very scared about the interview, but still he is getting IAS this year. So thankfully he doesn't have to be scared anymore. But he has gotten good marks. He's the kind of score that you may need to target. You know, like getting average marks, above average marks in all the papers almost. So he's done that. And then we have 87 Matrix Reloaded Aka Mukul. So Mukul, please come in. Active on the forum. And we have Nikhil here, 107 Nikhil Pathak. We published his interview also, Nikhil, so Nikhil can come in. Yeah, sociology guys, full of your political science and sociology this year. And then we have 115 is Master Ji here. I haven't seen him yet. Okay, so he is Master Ji. Big clap for him. Sudhanshu Dhama. Sudhanshu Dhama, बताएंगे. And yeah, so philosophy guys, mob him at the end. He is 248 in philosophy and ethics 105. So he's only next to Richie Pandey. So you can catch him at the end. And then we have IPS rank 1, Sagarika Nath with us. She's not here, okay. She's not here. Okay, and Sagarika Nath, she's here. We have Sagarika Nath, she here. Please come. She has secured 199th rank. Sorry. Okay. Oh, this was a moment, dream moment. So what we just saw is was that accidental? Okay, at the end of the Shilpi, yeah. So at the end of it, I should be calling Shilpi. By the way, we want a big applause for Shilpi because she's the one organized it. And मुझे उसे पहले बताना था. She's Yoga 123 rank 198 and Shilpi, and if she was just right before, she would have done that fall, and she also wanted exact same thing. So let's do that again for Shilpi. Big hand. See, I know a lot of you would be wanting that we hand over the mic to the toppers and they would want to speak for a moment, but I really want to keep the communication between the female toppers and Gaurav discreet, so we don't have a mic there. Okay, so you don't really want to listen what they're saying here. So we have now 229 Karthik Dubey. Karthik, please come in, a big hand for him. And then we have 231 Aman Mittal. Do we have Aman? Oh, thank you so much, Aman, for coming over. Okay, so we had 247 Surbendu Thakur, Modern Ashoka, but he hasn't turned up. But you'll find him very active on the forum. I can get him to answer any queries. And why you should do it is because he secured 119 marks in GS paper 3. He's not here, but he'll get his gift hampers home delivered perhaps, or he'll come to our office sometime. And then we have 248 Prabodh Sharma. Prabodh, do we have him? Thank you so much, Prabodh, for coming. And then the next one we have is 300 rank Vivek Chauhan. And one thing that I would like to say is Vivek has a super big hand for Vivek Chauhan. I have a few words for him. One thing is that in the end,
that's for all of you and for all of us actually. You know, the kind of person or what you do in the end in your life is a lot about the kind of qualities that you have. So Vivek has cleared it in the 6th attempt, and I'm telling you that it's not an easy. To be honest, Gaurav wouldn't have done it. Couldn't have done it. All right, so. Yeah. And I would say last year we had Suharsh Bhagat. He was 5th rank and 5th attempt. So if you have a couple of attempts, already clocked couple of attempts, don't give up hope. Everybody has seen, you saw Suharsh Bhagat. So this year we have Vivek Chauhan, and don't give up. A lot of people do score very well. And why I wanted to speak a bit about Vivek Chauhan is because, see, he must have had a certain quality which makes him successful today. And that quality may be persistence. That may not be, say, with anybody else who has done it before that, much before. Somebody may be smart, somebody may be lucky, but definitely he was not. So he must have, traveled the longest route perhaps. So that is why I would just wanted to have a brief thing. And then we have 391, Megha Bansal. Please come, Megha Bansal. And we have 494, Ankit Agrawal. Ankit Agrawal. Do you have Ankit? It's going to take a while, but he'll be there. And next we have is 651, Shravan Dutt S. We have Shravan here. Thank you, Shravan, for coming. And then we have next is 749, Guru Prasad. Guru Prasad. Big hand for him. And we have 1028, Abhishek Kumar is here. Abhishek Kumar. All right, and then one very, as I said, the guy who is going to get tea today is tea and snacks from today is VIP, @VIP. His name is Vipul. He's on the forum, and please Vipul, he secured 49th rank. Nickname is VIP, Indian Forest Service. So those of you preparing for forest, you know whom to catch at the end of it. And we have, again from forest, we have Mr. Anjani Kumar Singh. He's not left. All right. He's here, okay. Thank you, Anjani, for staying back. It must be pretty long. Anjani, please. And we have Mahatin Yadav, Indian Forest Service, 62 rank. Awesome guy. And then we missed out one major superstar, Arushi Sharma, 294. Essay girl, 141 marks, and she's all over Facebook. Huh? So she's a big hand, and please come forward, both of you. Just a few more people have come in. They didn't really inform us, but when they came to know that Gaurav has really come, so they just walked in at the last moment. And so, of course, if people are walking in because Gaurav is here, so definitely they must be women. So please welcome Sonakshi Tomar. Thank you so much, Sonakshi, for coming. This is Gaurav. And Rahul Raj, we have Rahul, please come in.
Big hand for Rahul. So this is it. Just yeah. Okay, I think my friend Rahul Kumar has also come in. He was there last, I think 2 months back. We were having this session by DP Agarwal. So this is Rahul, and he has secured a rank. Rank 312. All right, awesome. Please come on. Rahul had a pretty big fight. I know because I have been meeting him here and there. कभी ना कभी मिल जाते हैं. So there was a session by Unique Shiksha here by DP Agarwal. He was there in that event, and it was good. We had a very good interaction. So this is the thing that we have, and now on the age. Yeah. You know, I just snatched the mic from him because this was supposed to be the original purpose why I was called here. Felicitation. तो इन लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड, यू नो, आप लोगों के लिए आई वुड लाइक टू जस्ट से लाइक वेरी स्मॉल थिंग. यू नो व्हाट इज दैट थिंग विच मेक्स दिस एग्जाम डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. हिंदुस्तान में इतने सारे एग्जाम होते हैं. जेई का एग्जाम होता है, कैट वाला होता है, एम्स का भी होता है, दुनिया जहान के एग्जाम होते हैं, और एक सिविल सर्विसेज का होता है. What is that one thing which makes this exam different from everything else? बोल बेटा. The peace which we get from each other, because it's not like something. अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं Very good. दूसरे को भी Very good. एक साथ आगे बढ़ूंगा. You know, आप लोग अपन कई तरह के आंसर सुनते रहते हैं, right? Is the mother of all exam, is very difficult, very random, this and that. नहीं. You know, the thing which makes this exam different from everything else is not the exam, but it's the kind of platform which clearing this exam gives you. क्यों? जेई इससे मैंने 2-3 एग्जाम दिए, जेई दिया है, कैट दिया है और ये सिविल सर्विसेज दिया है. जेई का एग्जाम आई रैंक टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, बट स्टिल दिस एग्जाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज इस देश के जो लोग हैं, यू नो, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. ठीक है, दिस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स नॉट डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी और एनीथिंग, बट बिकॉज इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में योर लाइफ वुड नेवर बी सेम अगेन. तुम्हारे ऊपर जो है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ होगा. यू नो, आप जो है भले ही अपनी गली के अंदर क्रिकेट खेलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जो है भले ही अपने क्लब के लिए खेलो, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलो, स्टेट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट द मोमेंट कोहली या सचिन तेंदुलकर उठ के इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, इट रियली बिकम्स अ डिफरेंट थिंग. इट बिकम्स अ वेरी नोबल थिंग बिकॉज बिलियंस ऑफ लोगों के एक्सपेक्टेशंस वो लोग कैरी करते हैं. सिमिलरली इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में नाउ यू आर कैरिंग द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. सो I remember like saying this when I wrote my last blog. उसके अंदर मैंने लिखा था, उस समय मेरे को इसका पूरा मतलब नहीं पता था, पर स्टिल मैंने लिखा था कि टॉपिंग दिस एग्जाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू चूज टू डू आफ्टर टॉपिंग. आज मैं आप सब लोगों से यही कह सकता हूँ कि यू हैव सक्सेसफुली क्लियर दिस एग्जाम, यू हैव टॉप दिस एग्जाम, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ बिगिंस द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आप लोग सभी जो है, I hope कि in your future service you are going to carry this forward and you are going to do justice with the expectations of the people of this country. Thank you. So one thing is that you heard almost everyone speak. So this is a good time now. We'll break and we'll not be back after the break. What you have to do is, if you can stay here for some time, you can speak to the toppers, and Gaurav would especially like to speak to the those people who are getting into service this year, and likewise. So we break now, and I hope the event was good. If you have any questions for us or overall forum IAS or anything, if your login is not working, this is not the right platform. All right. So that's it. Thank you so much all for coming. Do we have anything else?
So we are going to have all the toppers that are here on the stage once. Starting, you're the topper, right? Oh, he's one. Please come, all of you. Or we can just stand below because I'm not sure of the dais. You can stand. Please come, all of you. And thank you. These are the guys who have made Forum IAS what it is. These are helpful people. They've secured ranks and you can see them loitering around. And the best part is I want you to see them what they're doing before they became, you know, thanks guys, I got rank 81 and stuff. So you can see them what they were. So these are here and all of them, and we are having a photo. So. And Gaurav, please come in the center. They want to have a photo with you.